जी सलामुना په خیرونه ګډ مارنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمر خان څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې زه بالکل په مزه کې نه یم او بالکل هم ټیپ ټاپ نه یم د هغې وجه دا ده څنګه تاسو پته راته چې وایرل شوي دي که نه تروټ انفیکشن او تبه او هغې سره سره چې دی نو زکام خیر ما ته مو شو پرون یو داسې یک ګیدرینګ و چې خلک ډېر زیات وو نو ما خیال د هغې وجې نه ما ته هم لږ مرۍ والا مسله شروع ده خو په ټایم باندې چې دی نو خپل خیال ساتئ نن سبا مخکې ملي چېرې مالټې ډېرې زیاتې خورئ خبر دا چې دا وایرس تاسو ونیسي نو هغې سره بیا طبیعت داسې خرابېږي چې بیا مالټې هم څه نه شو کولی خو بټ کوشش کوئ چې ځان ګرم وساتئ کوشش کوئ چې ګرمې اوبه وڅښئ دا هم کوشش کوئ چې ویټامین سي څومره واخلئ دومره زیاته ښه ده که نه او ماسک اچوئ ماسک مخکې به د کووډ خلکو نه اچولو د کووډ وجې نه خلکو اچولو خو زه په کار دا چې تاسو اچوئ ځکه دا وایرس چې کوم دی دا ډېر زیات وایرل دی نو تاسو پته نه چې کوم ځای کې کم تاسو ته ولګي که نه نو ماسک خامخا اچوئ لیدونکو د کرکټ چې کوم مینهوال دی هغوی دپاره ډېر زیات لوی خبر دی جناب بالکل او هغه تړلی د T20 کرکټ سره او د شعیب ملک سره جناب شعیب ملک چې کوم دی هغه د پاکستان لومړنی لوبغاړی دی چې هغه په کرکټ کې چې دی په T20 کې چې کوم دی 12,000 رنزونه کړي دا خبر نن سبا هر طرف ته دی د دې حوالې سره موږ نن سټوري تیاره کړې ده ځکه چې موږ غواړو د دې حوالې سره موږ تاسو ته ځینې معلومات چې کوم دی هغه شریک کړو شعیب ملک په 1 فروری یعنې په اولنۍ فروری 1982 کې د پنجاب په ښار سیالکوټ کې زیږېدلی دی د شعیب ملک د بچپن نه یعنې وړکوال نه د هغه د کرکټ ډېر زیات شوق و هغه د خپل کیریر آغاز یعنې خپل کیریر چې کوم دی هغه په لومړي ځل په 1999 کې چې کوم دی هغه شروع کو هغه هم لوبه چې کومه وه هغه د ویسټ انډیز سره وه شعیب ملک د ون ډے سره سره په T20 کرکټ کې هم یو مقام پیدا کړی دی او څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې شعیب ملک د پاکستان لومړی د T20 کرکټ دویم لوبغاړی دی چې 2000 رنزونه جوړ کړي د پاکستان اولنی خو د T20 دویم لوبغاړی دی نو اولنی لوبغاړی څوک دی جناب کریس ګیل هغه چې کوم دی هغه د هغه نه پس اوس شعیب ملک دی او شعیب ملک تقریبا په 485 میچز کې چې کوم دی نو هغه 12,000 رنزونه چې کوم دی هغه برابر کړي دي او د پاکستان ټیم چې کوم دی نو کپتان هم پاتې شوی دی په کال 2010 کې پاکستانی لوبغاړی شعیب ملک د بھارت قومي ټینس پلیر ثانیه میرزا سره چې د واده وکړو او یس دا واده ماته یاد دی ځکه چې ما خیال څه کانټروورسي هم راوته څه جینۍ راغه چې هغې ویډیوګانې کولې چې بهی دا خو زما خاوند دی او داسې کیسې خو بهرحال هغوی اوس چې کوم دی نو واده شوی دی او د هغوی یو زوی هم دی او مخکې ورځو کې د دوی د طلاق یا د ډیورس سره تړلي ځینې خبرونه هم په سوشل میډیا باندې راتله چې د هغې بیا شعیب ملک دا بیان ورکړ چې دا خبرې ټولې غلطې دي البته د هغې د ښځې خاوند چې کوم دی یو شو چې کومه د هغه را روانه ده چې د هغې نوم دی د میرزا ملک شو مخکې چې دا په دوبۍ کې ریکارډ کیږي او دا شروع شوی هم ده او ډېر خلک دا خوښوي هم او د دې ریکارډینګ روان دی نو دا د کرکټ سره تړلي د شعیب ملک د 12,000 رنزونو چې کوم دی سټوري چې موږ تاسو سره شریکه کړه لیدونکو تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ هغې دپاره زموږ ټلیفون نمبر دی جناب 051-8747804 یعنې 051 دا د اسلام آباد کوډ دی 8747804 یعنې 8-4-8-0 دا زموږ ټلیفون نمبر دی زموږ د پروګرام د ټلیفون بل نمبر دی 051-8746904 یعنې 050-8-4-9-0 تاسو موږ ته واتساپ میسج هم کولی شئ 009230807778 نو 2008 د وایي سري خوري که نه نو هغه باندې سره داسې درون او تبه چې دي که نه نو هسې سړی لږ داسې هوا کې لګي مازغی بالکل که نه نو سمې خبرې هم ترې نه کېږي کاټ ته ګورم را نه ویل کېږي خو همدې سره ځو چې دغه طرف ته د شا پخلي طرف ته او ګورو چې شا پخلي کې چې دی نو نن زموږ چې کوم شیف دی هغه څه تیار السلام علیکم زکي وعلیکم السلام جی جناب خبرې کوئ که نه نن زه ډېر زبردست تاسو نن طبیعت هم ډېر زیات خراب دی او هغې نه پس نن کم نن ډېر جوړم ډېر زبردست د هیلث لپاره ډېر کم سړی هیلث کوشنز کم هغه دي چې هغې لپاره ډېر زبردست جو یونیک ګریک سیلډ زه نن تیاروم په ډش کې که نه د دې هم ریسپي ده د دې کې کوم انګریډینټس استعمالیږي هغه انټروډیوس وکړم هغې لپاره مالا فرسټ اف اول دا سلاد پته پکار دی یو هغې نه پس 50 ګرام
ما ته آیسبرګ پکار دی هغه نه پس مال یو عدد سیب پکار دی هغه نه پس ما ته یو عدد بادرنګ پکار دی هغه نه پس مال یو عدد گاجر پکار ده هغه نه پس یو عدد مولا چقندر پکار دی اور هغه نه پس یو عدد مولا ټماټر پکار دی और 15 दाने मूला ग्रीन चिली पकार दे खादरी का इंग्रेडिएंट्स पर बल 5 टेबल स्पून माला मूला दा लेमन जूस पकार दे 2 टेबल स्पून विनेगर मतलब सिरका पकार दा 10 ग्राम मूला दा मायोनीज पकार दे 10 ग्राम मूला दा जेलपिनो कता सो कतेम शे जेलपिनो दा मूला पकार दे अगले पास दा 10 ग्राम मूला ब्लैक ऑलिव दा मूला पकार दी आगे बस और स्पेशली कम दे सैलेड की हम टेस्ट जोड़ाई आगे लपारा दा वाइट पेपर पकार दे 5 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून दा गर्म मसाला दा पकार खादरी दा कम तरीका दा ढेर आसान दा फर्स्ट ऑफ ऑल दा कम सैलेड दे दम रवालू बा दा बलक चोप को बा गाजर बरवाल दा बो चोप को बादरंग बरवाल दा बो चोप को आगे पास दा चुकंदर बरवाल दा बो चोप को दा बच्चों को तैयार बुकाने पास मुंगलाल बिछ दे कहे मिक्सचर दे तदे कम ड्रेसिंग दे कम मिक्सर कम जुड़ी की सैलेड लपारा आगे बा मेयोनीज बरवालू और आगे के दा लेमन जूस और विनेगर दा पके वाजू तकरीबन 25 मिनट्स दे मेशको बा खम मिक्सिंग बको दे सॉस बो जोड़ो संग दे सॉस तैयार शी आगे बस स्पेशल कम शप 10 ग्राम कम शप कुकिंग ऑयल दे आगे बरवालू पैन के 5 मिनट्स हाफ फ्लेम बांधे ला गरम बकू संग शम कुकिंग संग गरम शी शम कुकिंग रवालू बाखपल कम मिक्सर जोड़ कर दे दा बदी की वाच हुआ दा 5 मिनट्स नोर बदा शेक होगा संग शेक बशी दा कम सब्जियां गसली बादरंग सेब आइसबर्ग गाजर टमाटर दा टोल लेके वाच हुआ ला साल बलक मैश को बा फोन में वालू है कि लग मैच बकू संग मैश शी ताकि के बल्कि मिक्स बशी यानी बस मुगा डिश आउट बुक दा मोदे तरीका तेरा आसान मैश के खुदा चले कमंगा मैश पोटैटो यादो चागा बिल्कुल मंगा दगा को दा बता स्टकवे दा सिस मैश कवे बकना मिक्स कवे बा दा आशन मैश को बना लगोते ला सर मतलब मैश को दे कम हम जोड़ कर ले कम मिक्सर जोड़ कर दा दे सर मैश बुक दे सर आग बोलते कम देखिए कम मिक्सर जोड़ कर दा दे सर आग मिक्स बुक मिक्स वाया कहना जेम संगा स्मैश क्यों दा सर स्मैश क्यों दे सर मिक्स बुक मतलब मिक्स बकई हां दे सर मिक्स बुक आगे पास दाल में डिश आउट बशी दा तरीका हां सही दा थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सैलेड चिकन दा खामखा गसल पकार दी और सब्जियां नेड़ी ज्यादा ज़रूरी दी और दा शनी सब्जियां को खामखा लगे संग चाइज बढ़ दी याद कर सलाद पती दी याद एकड़ी गाजरी सबा कोर जे ज्यादा सोती ستدي मार्केट की और जानम दी नागम खामखा खपल फूड की शामिल हो तर तासो सेहतमंद पाती शे हमदा से कना जकी जकी दारा तो वای چې دا سالډ خو بنن په ټول پروګرام کې مطلب دا چې به تاسو پخې موږ لپاره موږ په تاسو لګي دا سالډ ته 15 منټ کې تیار کی نه نه د دې کوم مکسر سوز آی کم سے کم 35 منټس لګي کنه دا دوه مزه دلا دا وینیګر په والو اول دکیا تقریبا 15 منټس دا مطلب مکس کوبا نو دا رقم زی سلاد ده دا د میډم دا یو یونیک دا د ازبک یو ډیش دی دا مو تیار کړل خپل د ازبکستان کې مو شیف ډیر زبردست هغه اگر ما ډیر نو دا ور سره وای کنه ځکه چې کم ډیش تاسو تیاروین ور سره وای چې دا کم ملک ډیش ته کنه چې موږ ته پته لګي کنه بالکل ډیفینیټلی ما هو څنګه ویل خلک خلکو ډیر دا پته مې دا کم دا ډیش د گریک سیلډ ار یو سره کېدی چې سترګو ته شي وي دا سیلډ درست کېدی شي ټیک شو جی ډیره زیاته مننه لیدونکو زمونږ پروګرام کې بیلابیل میلمانه دي هغه به هم پروګرام کې موږ شاملو خدا خو ورکوټ شاندمالو واپس راستانه کیږي जी जनाब वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته تاسو مونږ دا وخت نه خپلې غوړې د هم پښتو ونه اور اوس دا وخت مونږ سره ټلیفون کال لږه چې دی پروګرام کې تاسو برخه غسر هم لیزات ضروری دي نو چې دینه مخکې ملمانه راشي تاسو سره یو څه خبرې وکم دي ګورو چې مونږ سره کال باندې سوق دي جناب هلو السلام علیکم जी वालेकुम अस्सलाम सूख थी मुंग सर कम से ना
سیف خان خبرې کوم پېښور نه. جی سیف څنګه تاسو خیر؟ شکر الله کرم، تاسو ښه؟ الله کرم دی. نیو خو بس کوشش کوو چې ښه شو د ویانو باندې. بالکل بالکل. جی سیف پروګرام ته کال کړی دی، څه به ویل غواړئ، څه خبره به شیر کول غواړئ موږ سره؟ جی جی بالکل، زما پروګرام ډېر خوښ دی او زه خپله تاسو هر یو پروګرام ګورم. تاسو زه خپله ذاتي موډلینګ کوم ښه ډېر ښه. او تاسو پرون موډلز راغوښتي وو واو. او انشاءالله زه هم غواړم چې تاسو سایټ ته چکر ولګوم. زما ستاسو پروګرام ډېر زیات خوښ دی. ښه صحیح ده. ګوره موډلینګ خو داسې چل دی چې نن سبا خلک ټیک ټاک کې جوړوي، هر سړي په ځان موډل ښکاري که نه. خو که تاسو کړي دي کیریر کې که نه، لکه څنګه چې پرون کوم موډلز راغلي نو افکورس هغوی کار کړی دی. که زما تاسو کار کړی وي نو انشاءالله ضرور زموږ پروګرام کې ستاسو ځای شته، تاسو به انشاءالله راشئ، بیا به خبرې کوو. تھینک یو ویری مچ، ډېره زیاته مننه. تھینک یو. ښه اوس زما د شام پخلي طرف ته چې موږ سره مرسته کړې شام بناسپتی اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا، دا راته ووایه زکي چې دا اکثر خلک سلاد جوړ کړي به یې فریج کې کښېږدي که نه. نو ځینې خلک وایي چې دې کې مالګه نه دی اچول پکاره، ځکه چې هغه کوم چې دا سبزي وه یا دې کې چې کوم سبزي یوز کېږي سلاد کې، هغه بیا اوبه را پرېږدي، لکه ټماټر شو که نه. ټماټر خو بلکې خرابېږي که نه. نو داسې څه دغه چې لکه سلاد خلک جوړ کړي او هغه تیار کړي، ځینې خلک جابس کوي نو هغوی دپاره هر وخت ریت هر وخت سلاد جوړوي. نو تا سره داسې ټپ شته هغوی دپاره چې هغوی سلاد جوړ کړي، څه شی دې پکې نه اچوي چې کله هغه خوري هغه ټایم دې پکې واچوي؟ دا یو نه اینی سلاد نه بالکل. تاسو ځان له ګرین سیلډ نه دی، هغه ځان ته کور کې تیارول شي هغې لپاره. جی هلو، موږ سره مظهر کال دی. جی هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مظهر څنګه یې تاسو خیر؟ خیر دی، شکر الحمد. تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک خیر دی، الله دې صحت درکړي. امین. تھینک یو تھینک یو. ستاسو ما خیال دی مرې او بیا زه مظهر ماشوخیل خبرې کوم د پېښور نه. جی 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 ماشوخیل صاحب. ښه نو هغه زکي صاحب نه چې کوم دی زما یو سوال و، هغه دی چې دا سبزي جوړول ښه نو دته پکار دی لږ په مزه دغه ښه که نه. دا انګریډینټ دا څیزونه چې دي بالکل بالکل اصل کې نو لږ په مزه باندې خیر. او بل دا چې کم تاسو حکیم صاحب راوستي د هغه څه نښه پته موږ ته هېڅ قسمه میلاو نه شوه. نو مال که تاسو د هغه موږ ته څه نښه پته په ټلیفون باندې راکړې نو ډېره به ښه وه. صحیح ده. حکیم صاحب روان پروګرامونو کې راځي، ما خیال چې د هغه تیر پروګرامونو کې چې کله راغلی نو هغې خپل اډرس ښودلی دی. ما هغې نه باقاعده تپوس کړی چې ستاسو کلینیک یا ستاسو کوم ځای کې کښېنئ اسلام آباد یا پنډۍ کې، نو هغې هغه ښودلی دی. تاسو هغې تیر شوي پروګرامونه ګورئ، هغې کې به وي. صحیح ده. او بیا هم که نیکسټ کوم پروګرام کې راغی زه به ترې نه بیا هم تپوس وکړم. او زکي باره کې چې تاسو کومه خبره وکړه په دې کې زه هم تاسو سره 100% متفقه یم. زکي له پکار دی چې لږ ورو ورو خبرې کوي که نه، چې تاسو هم پرې پوه لږ ورو ورو کوي او لږ داسې وضاحت سره. ما خیال دی پښتو داسې خاص کلیر نه ورځي که نه لکه ستاسو غوندې چې نو ده له پکار دی چې لږ وضاحت سره او لږ مزه ورځي. جی جی نه پښتو خو ماشاءالله ډېره ښه وایي، خو لږ چې روغ خبرې کوي نو مسله به حل شي. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ډېره زیاته مننه. جی جناب ګوره زما درته 3 میاشتو نه ډز ستړی شو، زه ته دا ټول ټیم نه ډز ستړی شو چې بھائی جناب لږ روغ خبرې کوه چې لیدونکي به پوه شي په تاسو جلدي. دا دونه تیز خبرې ته د بیګم نه یېرېږي څنګه؟ نه او که ته چې به زر زر خبرې کوم دا پروګرام به زر زر ختم شي، داسې نه ده. زموږ پروګرام به سهار 11 پورې که ته زر خبرې کوې او که روغ خبرې کوې، خو روغ خبرې کوه چې لیدونکي ته دومره ښایسته ښایسته ستا خبره چې یونیک او ډفرنټ ډشز ښیي نو پکار دی چې خلک هغې باندې پوه شي که نه، چې هغه تیار کړي که نه. بالکل جناب. زه ډېر اپریشیټ کوم زکي ډېر مزدار کوکینګ لکه داسې ډشز راوړي چې هغه ما هم نه کتلي که نه. او زما چونکې سبزي او دا دال او دا چیزونو سره زما هسې هم ډېره زیاته مینه ده، په کار هم دا چې دی نو هغه چې موږ نارملي پخېږي موږ ورسره هغه ډشز سره چې د سبزیانو نه تیارېږي خو موږ نارملي هغې سره عادت یو هر وخت هغه خورو. خو لکه زه پرون پالک چې کوم تیار کړی و که نه هغه یو ډفرنټ و. نن چې دی سلاد کوم تیاري نو ډشز د ده ډېر یونیک وي، ډېر مزېدار وي، افکورس هیلدي وي. خو لس چې بس زکي چې کوم دی که نه هغه لږ روغ خبرې شروع کړي. تھینک یو جی تھینک یو. بله تاسو کم خبره کوله ما سره ګرین سیلډ او جی او جی او جی منځ کې پاتې شوه. بالکل دا کم اکثر سهار کله خلک آفس ته زر زر روان ټایم کمی منډه پکې وغیرہ ډېر زیات هغې لپاره ډېر دا د ګرین سیلډ ټول نه ښه دی. یو خو هیلث لپاره ډېر ښه دی، بل تاسو ځان لپاره استعمالولی شي دا گاجر والے او هغه نه پس بادرنګ والے هغه نه پس دا سیب کټ کې پکې آیسبرګ والے دا پکې او لپاره برنه ډېر زیات جلدي ټایم پکې نه که نه. او اصل کې ډېر خلک آفس کې روان زر زر که نه تللی شي هغه ټایم نه هغه ځان ته دا هغه ته هم ځان ته استعمالول شي. هغه دا گاجر بادرنګ او آیسبرګ دا ګرین سیلډ
او ځان د بره لیمن جوس پکې واړکي او دا خره واتساپ میسج هم تا خبرې بیا په ریپیټ واچولې ښه ښه لیدونکو موږ ته ځینې واتساپ میسیجز راغلي هغه تاسو سره جناب زه شریک کوم جي سلامونه تاسو ته او ستاسو ټیم ته وعلیکم السلام توراب یم د افغانستان څخه ډېره زیاته مننه توراب امید لرم چې روغ جوړ به یې د الله کرم دی ډېر روغ جوړ نه یو خو بس ګزاره کوو څنګه چې تاسو ښکاري ستاسو پروګرام ډېر مزه راکوي توراب ډېره زیاته مننه افغانستان نه بیا بل میسج دی جناب اسرار علی سواد چارباغ نه دی جی ہوپ یو آل گایز آر ډوینګ ګوډ هغه ویلي دي چې زه ستاسو په خیر پښتونخوا پروګرام ګورم امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او ډېر ټایم نه ستاسو پروګرام ګورم آی ریلی اپریشیټ یو اینډ یو زموږ ټیم او زما ستاینه کړې ده ډېره زیاته مننه د سواد چارباغ نه بیا هغې نه پس بل واتساپ میسج دی جناب موږ سره میرویس خان یم د ګران افغانستان څخه ګرانې زه ستا خاص مینوال یم او غټ ارمان مې وي چې یو وارې در سره ملاقات وکړم میرویس خان ډېره زیاته مننه د ګران افغانستان نه ملاقات دغه ځای ستاسو ما بالکل په ژوندۍ بڼه بالکل نیغ په نیغه ګورئ د هم پښتون نه لایف دغه ملاقات دی او داسې ده چې ستاسو د مینې زه ډېر قدر کوم د ټول فینس چې څومره مینوال دي بټ زما دپاره به دا ډېره ګرانه شي چې زه ټولو مینوالو سره داسې زما ملاقات وشي خو د ژوند څه پته نه لګي مې بي چېرته کې تاسو راشئ دلته یا زه راشم افغانستان ته نو ملاقات وشي ډېره زیاته مننه ښه جي سلامونه زه آرین سرتاج افغانستان د هلمند ولایت څخه پروګرام زه روزانه ګورم ډېر ښایسته دی آرین سرتاج ډېره زیاته مننه د هلمند د ښایسته ولایت نه جي ډېره زیاته مننه کورم ودان او سلامونه د پښتون اوکې د هم پښتون ټي وي ټولو همکارانو ته ستاسو پروګرام ډېر مینه باندې ګورم او ډېر د معلوماتو ډک وي پروګرام اجاز خان د باجوړ نه ډېره زیاته مننه اجاز خان تاسو باجوړ نه موږ ته میسج کړو تھینک یو ویری مچ لیدونکو تاسو هم موږ ته واتساپ میسیجز کولی شئ زموږ واتساپ نمبر چې کوم دی په سکرین هم ښکاري اینډ تاسو دا خبرو کې چې د معلوماتو نه ډک نو نن پروګرام هم د معلوماتو نه ډک دی د هغه سټوډنټس لپاره کوم چې غواړي چې هغوی مخ نه بهر لاړ شي سبق دپاره یا ایون دلته کې موږ سره داسې یو میلمانه دلته کې را روان دي چې هغوی به تاسو ډېر ښه ګایډ کړي تاسو کالم کولی شئ ځکه چې ایجوکیشن ډېر زیات سټوډنټس چې کوم دي هغوی سبق وایي نو یا خو داسې چې هغوی ته سرکاري یونیورسټي کې چې دی نو داخله نه میلاویږي نو پرایویټ ظاهر خبره ده څوک افورډ کول نشي او یو کس دا وایي چېرې که بهر لاړو سبق هم ویلی خو بیا دا سوچ کې چېرې چېرته لاړ شو هغه لاره ګودره ورته سمول کړم داسې یو ټیم به انشاءالله د بریک نه پس موږ سره راځي هغوی سره به انشاءالله موږ خبرې اترې کوو د دې باره کې معلومات تاسو سره شریکوو خو اوس همدې سره چې دی نو زه ځم د ذکي نه زه یو تپوس کوم ذکي دا راته ووایې دا خبر راته وکړې چې دا کله موږ ډیش تیاروو که نه اوس تاسو ډیش تیاروئ نو په هغې ډېر محنت کوئ دا اوس هم هغه له ګارنیشنګ دپاره تاسو بادرنګ کټ کوئ بالکل په کور کې زموږ ښځې داسې نه کوي دا ګارنیشنګ څونه یو لوی رول لري په یو ډیش کې چې هغه تاسو سرف کوئ اصل کې او یو دا د دې ډېر مین رول دا دی د دې ګارنش بغیر یو ډیش موږ تیار کړی ډېر ښکلي که نه یو هغې مثال دا دی یو سالن ډېر ښکلې پکړي او هغې ډېر مزدار ذایقه وي په کتو کې مطلب که نه ښه نه لګي که نه یو ډیش ګارنش دا دی او سالن ډېر بیخي ټیسټ دومره ښه نه وي بره ډریسنګ ډېر ښکلې ډېر مزدار جوړ کړی هغه پس دا ښکاري به ډېر مزدار یو خو ډیکور د دې یو ډریسنګ ډېر مزدار دی څنګه ډریسنګ ښه ښکاري خامخا به ډیچ مونږ یو هغه ډېر مزدار به ښکاري دا د دې مین رول دی دا دی تاسو ډیشز تیاروئ که نه په هغې کې غوړي هم کم وي خو اکثر موږ خوراک کوو نو خلک ډېر زیات غوړي پکې اچوي که نه چې هغه صحت لم نه ښه نو آیا تاسو چې کوم پروفیشنل شیف یې ستاسو ټریننګ داسې شوي که تاسو په خپله دې کې آیل کم اچوئ چې ګراني ده بالکل بیسیکلی یو اصل کې ګینز مین چیز د آیل ډېر زیات کم اچول پکار دي یو لیمټ یو ډیش مطابق یو فار ایگزامپل مونږ یو پرسن مطلب ډیش مطلب کوکینګ وکړو هغې لپاره مونږ به 2 ټیبل سپون یا 5 ټیبل سپون هغه به آیل پکې واچو او زیات آیل پکار هم نه دی د هیلث لپاره ښه نه دی کلسټرول زیاتوي د هیلث ډېر به خیال ساتي مطلب دا دی چې عموما موږ بهر چې خوراک ته ځو زه د ټیپیکل هغه پاکستاني خوراکونو خبر نه کوم چې په هغې کې داره نه غوړي لکه دا سالن دی یا سبزي ده یا چې سم دي د پاسه پې دونه زیات آیل وي که نه نو هغه رسټورنټس نه یادوم هغه رسټورنټ ډېر رسټورنټس داسې دي چې تاسو لاړ شئ نو تاسو بالکل د غوړو نه پاک د ډېرو غوړو نه پاک سالن ملاویږي جناب ذکي نن تاسو لپاره ډېر هیلدي او ډېر مزیدار
उज़्बेक सैलड तयारी उज़्बेक सैलड वो तबेले शो का ना बिल्कुल उज़्बेक में वेली से ग्रीक सैलड में वेली से दास कम जी ग्रीक हाँ ग्रीक एंड उज़्बेक हाँ यस دا وسکه اوس به دوړو پیجنګ یو زمونږ نه بل وایي زمونږ نه خیر تاسو उज़्बेक सैलड में से ग्रीक सैलड में से تاسو خپل هغه اوپینین ها لګا خو تاسو چې دا زده کړې د کم ځای کې تاسو چې ازبکستان کې تاسو دا کتل بالکل ازبکستان में دا مې ذکر د مو شیف شیف باندې زبردست شیف هغه نوم علي بابا نوم هغه علي بابا خاجي خاجي هغه مو زبردست شیف ٹھیک شو ثانک یو زکی لیدونکو دا Thank you. شوی پخلی چې کم دی دا زموږ سره په دې سیګمنټ کې به سلاد طرف ته یا کچن طرف ته بیا ځو دا خو ورکوډ شاندار مالم واپس راسان کیږو په خیر پختونخوا سره जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा لیدونکو ملکونه ترقی کوي چې کله ته تعلیم وي دا غزي خلک تعلیم یافته وي موږ په 21مې صدۍ کې یو موږ په 2022 کې یو خو اوس هم زموږ ډېرې علاقې داسې دي چې هغه د تعلیم نه محروم دي دا غزي خلک بیا کوم موضوعونه کې چې تعلیم اویلیبل دی خو هلته نور مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې تاسو ګورئ ګراني ډېره زیاته ده ایجوکیشن ډېر زیات ګران شو صحیح ده اوس هر یو کس چې کوم دی هغه یو سکول پورې خو هغه افورډ کړی شي بیا چې کالجز ته یونیورسټي ته خبره ځي نو د پیرنټس سره یعنې د مور پلار سره چې دی نو سټوډنټ هم ډېر زیات ورخطایي چې یاره دا مخکې به زما څه کېږي او دې کې ډېر خلک داسې هم دي چې هغوی دا وایي چې بهر موږ لاړې نو بهر کومې یونیورسټۍ ته موږ اپلای وکړو چېرته لاړ شو سکالرشپ هم وي په خپله چې ته فیس ورکړې هغه هم وي ډېر خلک چې کوم دی هغه میډیکل چونکې یا نور داسې شوبې دي چې هغه ډېرې زیاتې ګرانې دي انجینرینګ خو میډیکل زیات ګران دی نو په دې بابت کې موږ خبرې کوو موږ سره داسې میلمانه دلته کې ناست دي چې د هغوی میشن دا دی چې هغوی د ځوانانو هیلپ وکړي شي چې هغوی هر ځای کې دي او د ایجوکیشن حوالې سره که چېرته هغوی غواړي چې په پاکستان کې سبق ووایي او که چېرته هغوی غواړي چې د پاکستان نه بهر سبق ووایي داسې یو کمپني ده چې هغه دا یو میشن جوړ کړی دی چې څنګه د ځوانانو هیلپ وکړي جي د دې کمپنۍ نوم دی چاینیز ایجوکیشن ایډوایزر جي د دې چې کوم د دې کمپنۍ چې کوم چیف ایگزیکټیو آفیسر دی دا وخت ما سره پروګرام کې ناست دی جی حمزه جمیل خوش آمدید اور دې سره ناست سره جناب مارکیټینګ کې د دې سره چې کوم دی هغې بیچلر کړی دی او माँ सर उसना सर शहजादी हफ्सा आप दोनों को खुश आमदीद थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम करने के लिए सो शहजादी क्योंकि शहजादी है तो पहले उसके पास हम जाते हैं जी तो मुझे ज़रा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में हफ्सा के चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइज़र ठीक है तो ये कब शुरू की कैसे शुरू की आप किस पोजीशन पे इसमें काम कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रा हमें भी और देखने वालों को बता दें ये चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइज़र हमने स्टार्ट की थी 2018 में स्टार्टिंग करने का मकसद या इनिशिएटिव लेने का मकसद हमारा ये था कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें तो उसको कंटिन्यूटी के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया है जिसमें हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि चाहे वो मैट्रिक के बाद हो जो स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते मैट्रिक के बाद बैचलर्स के बाद मास्टर्स के बाद एंड पीएचडी ये सारे प्रोग्राम्स हम स्कॉलरशिप पे प्रोवाइड करते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए ओवरसीज़ क्योंकि सारे जैसे कि मैं लकी मरवत से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत हर्डल्स होती हैं कि हमने कैसे कहाँ फेस करना है किसके कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है कौन सा राइट पर्सन है जो हमें गाइड करेगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप फिर मैंने इंट्रो में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टूडेंट है अगर वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं हेल्प आउट करते अब्रॉड अगर जा रहे हैं तो तब हाँ हमारा मेन फोकस ही अब्रॉड स्टडीज़ का है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम उनका फोकस ही ये होता है कि हम बाहर जाके पढ़ें एक ड्रीम होता है ख्वाब होता है वो कहते हैं हम बाहर जाके पढ़ सकें काश हम पढ़ लेते या जैसे MBBS होता है अभी MD-CAT वगैरह हुए हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमारा ख्वाब था कि हम डॉक्टर बन सकते लेकिन डॉक्टर बनना बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी कंपनी जी मैं इसमें करता हूँ कि मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि मैंने स्टार्टअप कैसे किया जी प्लीज़ 2018 में चाइना में गया था तो देन आपको पता है कि रियलिटी पढ़ने गए थे आप? जी मैं स्टडी के लिए गया था। अच्छा क्या पढ़ा आपने? मैंने इंजीनियरिंग की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन से प्रोविंस से? मैंने की है शेंडोंग प्रोविंस से। अच्छा जी ओके उनके नाम भी इतनी मुश्किल है ओके जी मैं बता सकता हूँ लेकिन वो आपको मुश्किल है तो इसमें ये है कि फिर मैंने स्टार्टअप किया कि वो लाइक देखते हैं कि कज़न्स आपके कॉल्स करते हैं कि यार आप स्टडी के लिए गए हैं हमें भी कोई हेल्प आउट कर दें दोस्त होते हैं दोस्त भी होते हैं क्लास फेलोज होते हैं फिर टीचर्स होते हैं इवन के वो स्टडी के लिए पूछते हैं कि यार मैंने PhD करनी है हमजा हमें हेल्प आउट कर दो कुछ तो देन ऐसा किया कि हमने स्टार्टअप ऐसे लिया कि उन्होंने कहा तो हमने लाइक वो एजेंट्स के पास भी जाते थे आपको पता है पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंसीज़ हैं
तो जाते थे तो, लेकिन वो आपको पता है कि इस तरह से प्रेफर नहीं करते बच्चों को, वो जी इस तरह से ये चीज़ें हैं। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट थे, क्योंकि हमें एक चीज़ क्लियर पता थी, तो हमने उनको बोला कि यार ये चीज़ इस तरह से है। जब उनको क्लियर किया तो देन उन्होंने कहा कैसे है। फिर जब वो लोग गए हैं देन फिर उनके कज़न्स, उनके फ्रेंड्स, देन उन्होंने करते, फिर हमने क्या कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए कुछ। अच्छा, गुड, ठीक है। तो फिर आप, ज़ाहिर सी बात है, आप वहाँ में एज ए स्टूडेंट गए हैं, आपको ये अभी भी ये भी पता होगा कि जो स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे जो लोग उनको गाइड करते हैं उसमें क्या मसला होता है। बहुत मसले मसाइल ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा है। बीइंग का कंसल्टेंट यहाँ पर पाकिस्तान में, चाइना के लिए बहुत से लोग डील कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं कि वहाँ जाके आपको क्या हर्डल्स फेस होंगी या आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब आपको क्लियर कट नहीं बताते। तो हमारी जो कंसल्टेंसी फर्म है उसका मेन मोटो ये है कि हमने ट्रांसपेरेंसी दिखानी है उनको, फेयर बताना है कि येस आप लोग अपना पोर्टल्स के ऊपर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि येस हमारे एडमिशन्स हो गए हैं, स्कॉलरशिप्स हो गई हैं, और वहाँ के लिए सारी प्रॉपर गाइडलाइंस हम देते हैं कि आपने रहना कैसे है, आपका फूड कौन सा होगा, ईच एंड एवरीथिंग। अब चूँकि बात पाकिस्तान से निकल के अब्रॉड पे आ गई है, ऑफ कोर्स आप लोगों का ज़्यादा फोकस चाइना के ऊपर है, और चाइना बहुत सारे लोग अब जब वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो आपको होगा कि इंडिया से भी, जबकि हालांकि इंडिया की खुद यूनिवर्सिटी और उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इवन बहुत सारे बाहर मुल्कों से जो है तो लोग आते हैं चाइना पढ़ने के लिए। सो अभी ये है कि एक तो होता है स्कॉलरशिप पे, ठीक है, एक होता है प्राइवेट। आप जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करता हूँ हाईलाइट। इसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें कि बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है, प्राइवेट ही पढ़ रहा है, हाँ, तो उसको प्राइवेट एक्सपेंसेस आपको भी पता है कितने का आते हैं पाकिस्तान में, उसको वही अगर प्राइवेट चाइना में जाके भी प्राइवेट भी पढ़े, इवन कि हम लोग तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लेकिन अगर प्राइवेट भी जाके चाइना में पढ़े तो उसको बेनिफिट क्या है कि अच्छी लैब्स मिलती हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के उनको दोस्त मिलते हैं, क्लास फेलोज़ मिलते हैं। देन वो बेसिक उनको ये है, फिर वो अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, तो उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो पहले तो आप जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप, तो अगर मेडिकल के लिए कोई स्कॉलरशिप, जैसे कि मेडिकल मैंने पहले भी कहा कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए ये बताएं कि लोग कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें? आप बताते हैं या आपकी वेबसाइट पे होता है या फेसबुक, इसकी कैसे स्टूडेंट्स को पता इसमें ये है कि बेसिकली MBBS मोस्टली होता है सेल्फ फिनांस पे चाइना में। अच्छा जी, ओके, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में बहुत से लोग चला रहे हैं जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट MBBS का एग्ज़ाम ले रही है, वो अपने सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जी जी जी, तो ये चीज़ें जो स्टूडेंट्स को ये हर्डन पेश आती हैं कि इधर से तो वो चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका अपना बजट ही ये है कि वो 10 to 15 लाख है, तो उसमें से उसको तो ये कहते हैं कि आपका 10 to 15 लाख में स्कॉलरशिप लग गई है। बच्चा चाइना जाता है, देन उसको पता चलता है कि ये तो 15% स्कॉलरशिप थी या स्कॉलरशिप तो है ही नहीं। फिर बच्चे को ये हर्डन पेश आती है कि उसको ये नहीं पता कि मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। पीछे आओ तो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, और वो पैसे भी तो गए ना, जो आपने पैसे भी 10-15 लाख गए, उसके माँ बाप को भी कन्विंस किया होता है कि भाई वो ब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, पैसे भी गए, फिर वो बातें भी नहीं होती। आपको पता है कि आप आजकल आप हमारी फैमिलीज़ के सिस्टम जो आपको पता है कि ये तो गया था इधर से पता नहीं क्या समझ के गया है, तो अभी तो वापस आ गया है, तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत हर्डन पेश आती हैं। तो हम लोग बेसिकली हमारा यही है, और दूसरा हमारा बेसिक जो मोटो है ना, वो ये है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता कि किस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, जैसे अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी, जैसे आपने कहा ना कि वो वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप या 50% होता है या 50% होता है, तो कहाँ से जाने वो कि ये जो कंसल्टेंट जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो सही है, वो कैसे कंफर्म करे, उसको कैसे पता हो? उसके लिए ये फ्रॉड यूनिवर्सिटी कैसे बिल्कुल पता एग्जैक्टली उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपको जो एडमिशन नोटिस मिलता है, एक तो एडमिशन नोटिस भी फेक बन जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ऐसा मैं है। आपको बहुत से इसमें ऐड स्टूडेंट्स करता हूँ कुछ चीज़ें ना, कि आपने देखा होगा स्टूडेंट को पेमेंट लेके उसको फेक एडमिशन नोटिस बना के दे दिया, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि पोर्टल्स पे हम चेक कर हमारा जो सकते हैं। बेसिक मोटो यही है, स्टूडेंट को अवेयरनेस देना। स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये एडमिशन नोटिस चेक कैसे किया जाए। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, एजेंट्स क्या करते हैं, उनसे फ़ीस ले ली, देन आगे पे नहीं की। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी तो कहती है आप फ़ी पे करें, देन बच्चे को ये भी हर्डन्स पेश आती हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को आती हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर उन्होंने तलाश करना है, जाहिर सी बात है स्क्रीन पे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं कि आप लोगों के जो कंपनी है, आप लोगों की उनके फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, आप लोगों का वेबसाइट मेरे ख्याल में स्क्रीन पे लोगों को नज़र तो आ रहा है। लेकिन जैसे स्कॉलरशिप का है, आप लोग का अगर अपने ऑफिस के बारे में बताएं कि आप लोग इस्लामाबाद में हैं, आप लोगों का ऑफिस,
ठीक है। हमारी लोकेशन जो है होरी टाउन में है, ऑफिस नंबर 4। तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे एड्स वगैरह भी चलते रहते हैं और हम सेमिनार्स वगैरह भी कंडक्ट करते रहते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे विजिट्स होते तो हैं। ये चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइज़र के नाम से ही जी, आपको बिल्कुल। फेसबुक पे या जी, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल। ढूंढ सकते गूगल हैं। पे, जी। फेसबुक पे, बाकी इंस्टाग्राम टीम पे, हमारी ट्विटर पे। 24 आवर्स एक्टिव रहती है। जब जो भी कोई करता है तो हम कांटेक्ट फ़ौरन करते हैं उनसे। ठीक है, मुझे बताएं कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को ही आप help नहीं, करेंगे? हम लोग बेसिकली प्रेफर कर रहे हैं डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, ऑल मेजर्स और हैं हमारे पास। अच्छा। मेडिकल। मेडिकल में तो ये हो जाता है कि सेल्फ आ जाता है या फिर पार्शियल स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं। लेकिन बैचलर्स, डिप्लोमा, मास्टर्स एंड पीएचडी ये फुली फंडेड होते हैं। फुली फंडेड में क्या कवरेज आती है, उसमें आपकी ट्यूशन भी फ्री हो जाती है, आपकी अकोमोडेशन, रिहाइश भी फ्री हो जाती है और साथ आपको लिविंग अलाउंस भी मिल रहा होता है। तो आपको लिविंग अलाउंस सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है क्योंकि फॉर एग्जांपल हमजा, अभी आपने बात की तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से और लोग अभी वजाहत कर लें जो देखने वाले। आपने कहा कि ज़्यादातर मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि वो खुद अपने सेल्फ फंड्स पे वो जाएंगे, ठीक है। तो वो तो फिर अगर अपने जेब से पैसे लगा के पढ़ने तो वो पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते। मैं आपको क्या इसका, difference है जी फिर? मैं आपको इसका बताता हूँ ना। पाकिस्तान में पढ़ना है, पहले तो आपको पता है कि एमडी कैट का टेस्ट होता है। पाकिस्तान में एमडी कैट का टेस्ट देने के लिए ऑलमोस्ट 15 लाख प्लस बच्चे टेस्ट देते हैं। तो पाकिस्तान का आपको पता है कि 10,000 सीट भी नहीं होती है एमबीबीएस की, जो स्कॉलरशिप पे होती हैं या गवर्नमेंट सीट्स Merit होती हैं। तो बाकी बच्चे जो आपको पता है कि जो ऊपर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बच्चे हैं, फिर उनको ये डिफ़िकल्टीज आती हैं कि वो या तो अपना मेजर चेंज करते हैं, कोई फार्मेसी में चला गया, कोई नर्सिंग में चला गया। फिर अगर पाकिस्तान में फार्मेसी या नर्सिंग करता है तो बच्चे का मिनिमम एक्सपेंसेस भी पता है आपको कितना आता है। तो वही अगर चाइना में बच्चा एमबीबीएस करता है तो 40-50 लाख में उसको एमबीबीएस क्लियर हो जाता है। फिर ये चीज़ है कि अगर पाकिस्तान से वो करता है तो इसमें ये है कि हम पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज भी होती हैं, लोअर क्लास फैमिलीज भी होती और हैं। ज़्यादातर है भाई, आज महंगाई इतनी हो गई, मैं कह रहा हूँ हर कोई Inflation नहीं जैसे afford जैसे कर बढ़ता, सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। Of course। बच्चों का माइंड यही होता है कि यार, और आपको पता है कि पेरेंट्स का माइंड भी यही होता है कि कुछ पेरेंट की विशेज़ होती हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर्स बनाऊँ, मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर्स बनाऊँ। फिर पाकिस्तान के आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस की जो फंडिंग है वो आपको 1 करोड़ प्लस देनी पड़ती है या 50 लाख प्लस देनी पड़ती है। फिर पर ईयर फीस जो बच्चों की होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो देन ये है कि चाइना में आपकी डिग्री उतने में हो जाती है। उसमें फिर एक मेन बात- चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, फिर ये करती हैं कि पाकिस्तान में आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है किंग एडवर्ड है, उसकी जो रैंकिंग है 5000 है, और चाइना की जो लोअर क्लास यूनिवर्सिटी है उसकी 1700 रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की। तो आप रैंकिंग के लिहाज से भी देखेंगे, एक टॉप रैंकिंग कॉलेज है, उसकी फ़ीस करोड़ों में जा रही है, बच्चा कर रहा है। और फिर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि लोग कहते हैं जी चाइना के जी एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, चाइना को तो डॉक्टर जो है फेक डॉक्टर्स होते हैं। तो इस चीज़ के लिए अभी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ रहा है, कनाडा से पढ़ के आ रहा है, यूएसए से पढ़ के आ रहा है, उसके लिए भी एक टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया है जो कि एनएलई टेस्ट होता है। सही है। बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है, उसने भी एनएलई देना है। बच्चा चाइना से पढ़ के आ रहा है, उसने भी एनएलई देना है। ओके। तो इसमें ये चीज़ हो जाती है कि जब बच्चा आता है ना, तो अगर बच्चा उधर जाके पढ़ेगा ही नहीं तो वो कैसे क्लियर करेगा। वो आपको पता है कि किस तरह का यूरोप कंट्री का माहौल किस तरह का, इन्वायरमेंट किस तरह का है। जब बच्चा बाहर जाता है, अगर वो पढ़ता ही नहीं है, फिर कहते हैं जी बच्चे से इधर आके क्लियर नहीं हुआ। वो तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो पाकिस्तान में भी नहीं क्लियर होगा। अगर वो बाहर से भी अच्छा पढ़ेगा तो वो आके तो क्लियर करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बच्चा उधर से करेगा तो उसका इधर आके लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो अभी जो टेस्ट उन्होंने शुरू किया तो लाइसेंस उसको वैसे भी नहीं मिलेगा कि वो टेस्ट क्लियर नहीं करेगा जो आपने जी डॉक्टर्स वो के बिल्कुल लिए ऐसे ही है। जो अगर पाकिस्तान से करता है फिर भी उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर टेस्ट क्लियर नहीं करता। अगर चाइना से करता है फिर भी नहीं मिलेगा। इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से भी करता है देन उसको फिर भी नहीं मिलेगा। अगर वो टेस्ट क्लियर करता है देन उसको लाइसेंस मिलेगा। अब साहब कुछ इसमें ऐड यस, करना मैं इसमें चाहिए? ये ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, पेरेंट्स ने बहुत सोचा होता है कि भाई एफएससी करेंगे उसके बाद ये डॉक्टर बनेंगे, तो ये माइंड जो इनका 12 साल में बन चुका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एक बच्चे ने एम सेट किया होता है अपना कि यार मैंने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो वो जो डॉक्टर ना बनना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। तो वो अपना टाइम वेस्ट कर देते। वो कहते हैं नेक्स्ट ईयर हम फिर एमडी कैट अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर। मेरे साथ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ थी जिन्होंने ऐसा किया था। मतलब वो एक टाइम वेस्टेज भी हो रहा है और आप उसका मेरिट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो वो जो माइंड उनका ख़राब होता है ना, कि वो कहते हैं यार चलो अब किसी भी दूसरी फील्ड में हम स्विच कर जाते हैं, अपने एम्स को पीछे छोड़ देते हैं, जो हमें मिल रहा है उसी को कर लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो बाहर से अपना एमबीबीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। सही था। अभी मैं कह रही सही था। तो अफजा वो पश्तो कितनी समझ में आती है मुझे बताइए? पश्तो मुझे समझ सारी आती है, बोलती नहीं हूँ। अच्छा, फिर एक सवाल करती हूँ, मैं देखती हूँ कि आपको कितनी समझ में आती है। क्या कहते हैं हमजा? मैं पूछूँ? जी जी पूछ ले नो इशू। हाँ, अफसा दारा तो आए छे
ताज़ एजुकेशन ख़बर को द मेडिकल ख़बर होगा ना द मेडिक ने अलावा ताज़ चिकम स्कॉलरशिप्स वर्क करेगा ना ना कम फील्ड की ताज़ डिप्लोमा याद का सही द बैचलर ताज़ खूब फील्ड ताज़ याद ना कर लगा कम यो ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग्स की भी फील्ड है, उसमें बिजनेस की भी फील्ड है। लाइक मैंने MBA के लिए इनरोल किया है चाइना में। उसके अलावा जितनी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं सारी अवेलेबल हैं, बायोमेडिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अ लॉट ऑफ फील्ड्स हैं जिन बच्चों ने उन फील्ड्स का नाम भी नहीं सुना होता पाकिस्तान में। न्यूमरस फील्ड्स हमें वो प्रोवाइड करती हैं चाइनीज़। तो उसमें क्या 15% होता है, 50 या 100%? नहीं, उसमें 100% स्कॉलरशिप। हम उनको ये गारंटी देते हैं। वो गारंटी हम कब वो देते गारंटी कैसे देते हैं? वो गारंटी हम तब देते हैं, एक तो हम अश्योर कर देते हैं पहले से ही कि यस हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप डील कर रहे हैं। ओके। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आपने जो कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं अपना वो हमें भेजना है, फिर हम उसकी असेसमेंट करवाते हैं। आफ्टर असेसमेंट फ्रॉम चाइनीज़, हम चाइनीज़ से ही असेसमेंट करवा रहे होते हैं, फिर उसको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यस आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा। देन वो पेमेंट प्रोसीजर वगैरह होता है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ओके, तो मुझे बताएं कि ज़्यादा लोग शायद इसलिए भी अवॉइड कर रहे हो चाइना की चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, बहुत नहीं, मुश्किल से हैं उनके, तो क्या अल्फ़ाबेट्स कोई मोर देन 300 हैं, तो कैसे करेंगे, तो चाइनीज़ कैसे सीखेंगे? जी हाँ, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि अगर लाइक आप देख लें कि अगर बच्चा कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वो इंग्लिश करता है, आइल्स देता है, आपको पता है आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो वही चाइना में रिक्वायरमेंट है चाइनीज़, जिसमें चाइनीज़ लेवल होते हैं 1 2 3 4, लाइक जैसे आइल्स के लेवल होते हैं। तो इसमें ये होता है कि एच के 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एच के 3 होती है, या मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की एच के 4 होती है। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वो, मैंने वही बात आपको क्लियर की है पाकिस्तानी कि यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाया भी जा रहा होता है, मेन कोर्स होता है। लाइक 7-6 सेमेस्टर में ना आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो आप दूसरी लैंग्वेज स्टडी करते हो, या वो स्पेनिश होती है, वो चाइनीज़ होती है। मैंने खुद भी चाइनीज़ 7th सेमेस्टर में खुद पढ़ी थी, लेकिन ये इतनी टफ है नहीं जितना इसको हाइप क्रिएट किया होता है कि यार ये बहुत टफ होगी या हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलें आप मुझे कहें आप कैसी हैं चाइनीज़ में, पूछो मुझसे। मैं स्पीक कर सकता हूँ। हाँ। नी हाओ, नी जुइजिंग ज़म्माया। अच्छा, नी हाउ तो मुझे पता है कैसे जी, नी जुइजिंग ज़म्माया, हाउ आर यू? नेज़ो में क्या? नी जुइजिंग ज़म्माया। नेज़ुई जिंग माया, ये थोड़ा ज़माया। पश्तो से ज़माया, मिलती जुलती है। ज़माना। पश्तो से मिलता है। अच्छा, पश्तो से मिलती जुलती है। ओके। तो अगर कोई जा रहा है चाइना, कोई स्टूडेंट, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसको चाइनीज़ आनी चाहिए या कोई टेस्ट लेते हैं? जी, मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। स्टार्टअप में तो ये नहीं होता कि आप जाने से पहले एच के क्लियर करके जाएं, लेकिन ये आपका अपना बेनिफिट होता है कि क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ मार्केट में मोस्टली चाइनीज़ ही की जाती है। तो अभी वो प्रेफर कर रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो मोस्टली प्रेफर चाइनीज़ को ही करते थे। तो ये आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, फिर आप अगर जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है कि हाँ चाइनीज़ आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। फिर चाइनीज़, अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। पहले तो ये था ना, आप 2018 में गए, पहले तो ये था कि आप वहाँ जाते तो फिर आपको चाइनीज़ सीखनी थी, तो क्या अभी जाने से पहले आपको? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड क्लासेस ऑनलाइन भी थी, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया था कि जो उनके कोर्सेज थे उन्होंने इधर से उनको चाइनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट करवा दी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना आपको पता है डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन नहीं समझ आते। मैं वापस आऊँगी, हमारे पास एक कॉलर है, मैं फिर पूछूंगी कि ओके जिन्होंने MBBS किया लेकिन वो स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं, वो भी अपने पैसों से जाएंगे, ये भी हम बात करेंगे। जी, अली हैं हमारे पास। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। अली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? संगई तासो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। जी जी, बोलिए। अच्छा, आपका शो देगा था, तो मेरा क्वेश्चन CEO से कि मैं खुद MBBS का स्टूडेंट हूँ और अपने ब्रदर के लिए पता करना था कि वहाँ MBBS के लिए, और हम जब हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है जी हमजा? तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ और चाइना में MBBS का क्या डिफरेंस है, और एक्सेंट कभी, और यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग के बारे में आप काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपने MBBS कहाँ से किया है? किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड से। और आपका कितना CGPA या परसेंटेज कितनी है? हेलो, आपका CGPA कितना है और परसेंटेज कितनी है? 85 है। इसके अंदर जी। तो
इसमें ये है कि आपका हो जाएगा स्कॉलरशिप में। इसमें चाइना बेसिकली क्या करता है कि जो आफ्टर MBBS है फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, जिसमें ट्यूशन भी आपकी फ्री होती है, अकामोडेशन भी फ्री होती है और आपको लिविंग अलाउंस भी मिलता है। थैंक यू जी। मुसरत बीबी हैं इस्लामाबाद से जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसरत बीबी संगे तासु खैर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट आए हैं, इनसे क्वेश्चन करना, ये जो आए हैं। ये तो स्टूडेंट नहीं है, ये तो खुद एक कंपनी आई हुई है। स्टूडेंट तो ये थे, अब तो ये काम कर रहे हैं जी। हम पूछें, सब पूछना चाहते हैं ना। प्लीज 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 पूछिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि इतने ये बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये जो होरी टाउन में कर रहे हैं, तो होरी टाउन तो बड़ी छुपी अजीब सी जगह, वहाँ लोग कैसे पहुँचेंगे और किस तरह? और दूसरा ये कि किसी सीनियर और जो तजुर्बाकार टीचर्स हैं उनकी भी ये वो भी गाइड करते हैं या सिर्फ यही होते हैं? अच्छा, सीनियर टीचर हम लोग बेसिकली गाइड you, करते thank हैं। you. हमारा जो काम है, हम बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा को ही गाइड करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप वर्क वीज़ा के लिए गाइडेंस करें तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। हमारे पास बेसिकली जो लाइसेंस है वो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो हमारे पास वर्क वीज़ा के लिए लाइसेंस नहीं है, लेकिन हम इनको गाइड कर सकते हैं कि हमारा क्योंकि नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो देन ये हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें, वो इनको गाइड कर देंगे। और मुसरत बीबी की ये तो गोरी टाउन में है, कहूँगी कि आप गोरी टाउन पहुंचना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं कामरा से पहुंच सकती हूँ गोरी टाउन, तो ये इस्लामाबाद में रहते हुए भी पहुंच कहते जाएंगे। हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया ना कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चाइना चाइना ही चाइना क्यों ना जाना पड़े। तो चाइना तो बहुत दूर है, लेकिन गोरी टाउन तो नज़दीक है भाई, अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, When there is a will, there is a way. एग्जैक्टली, वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने ऐसे लोग मेरे साथ प्रोग्राम में हमजा आए हैं कि जो अभी बहुत बड़े ओहदे पे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमने तो मीलों चल के, कितने किलोमीटर पैदल चल के हम स्कूल जाते थे, क्योंकि पहले जिस गांव से उनका ताल्लुक़ था तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं थे। या आपको पता है, आप ख़ुद भी उस साइड से हैं, कोहाट, बनो, वज़ीरिस्तान, आपको भी पता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट पेशावर आते हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आती। इवन अभी भी मर्दान से, सवाबी से लड़कियाँ लड़के जो हैं वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते हैं पेशावर। सो मुसर भी ये बात आपकी नहीं सी ना कि आप ये कह रहे हैं कि गोरी जो है वो दूर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको चाइना भी जाना चाहिए और चाइनीज़ भी सीखनी चाहिए। वैसे भी अगर ये ऑफिस नहीं आना चाहते तो हम ऑनलाइन इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, कॉल पे या ऑनलाइन? बिल्कुल, हम उनको ऑनलाइन सेटिस्फाइड कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। ये स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता होता है भाई हाँ ये ऑथेंटिक लोग हैं जी। मेरे साथ जो चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइज़र जो हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं आगे भी बात करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैं पूछना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लूँ, या दमाग लूँगा दमीन और उस रास्तानी की गूँ। और बिया राजू, मैंने क्या कहा? आपने कहा हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाँ, और उसके बाद आएंगे। हाँ, गुड। हफ्सा को ज़्यादा मैं पश्तो सिखा देंगी और हमजा को नहीं पता कि मैंने क्या जी मुझे, लेकिन ये तो पता चल गया क्योंकि प्रोग्राम पहले भी देखता हूँ कि ये तो यही बोलेंगे ये कि के बाद यहाँ पे तो ये लेकिन ये चीज़ नहीं कंफर्म के बोला क्या है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। लिदुन को मुक्सरा उसी के ब्रेक कर लूँ दमा। जी लिदन को वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा। लिदन को दल की उस चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइज़र चिकम कंपनी दागी बलगढ़ मंगसर नास्ते आगे प्रोवाइड की GFAC चिकम स्टूडेंट्स ये आगे द पैरामेडिकल और इंजीनियरिंग चिकम दाखिली बंदोबस्त कवंदी आगे द गाइडेंस चिकम दी वर्की मासर नासर डॉक्टर ज़करिया तारिक जी सड़ी मशीन। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कितनी बश्तो आपको समझ में आती है? हफ्सा की जितनी या हमजा जितनी या उनसे भी ज़्यादा? पखैर रागले राशा कना आओ कना खा, बस यही कुछ। अच्छा, और चाइनीज़ कितनी आती है? चाइनीज़ आती है और खुश हो चुका। अच्छा अच्छा, ये आपने मुझे क्या कहा? अब मैं चाइनीज़ बोल लेता हूँ, चाइनीज़ बोल। अच्छा, गुड गुड गुड, ओके। आपसे पहले भी बात हो रही थी, हमजा से और हफ्सा से हम बात कर रहे थे ठीक है कि जब बात आती है ना कि अक्सर हमने सुना है कि स्टूडेंट को ये कहा जाता है कंसल्टेंट्स की तरफ से, चूँकि आपको लोगों का भी काम है, वो कहते हैं आपको तो हम मेडिकल का जो है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, आप वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ जगहों पे तो टेस्ट भी हो जाते हैं, इसके लिए स्टूडेंट चले भी जाते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो अभी ये हमजा कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, जो चाइना में जो स्कॉलरशिप्स है स्पेसिफिकली MBBS की, वो आपको मिलती हैं आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे।
अच्छा यानी अगर कोई स्टूडेंट एफएससी की बेस पे चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहे तो 99% ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो स्कॉलरशिप नहीं देती। ओए अच्छा सिर्फ 102 यूनिवर्सिटी है जो एफएससी की बेस पे प्लस उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसका एक ज़रा टफ क्राइटेरिया, उसके बाद स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी अगर जो आप आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो चांस, हाँ, तो वो जो और एक 1% है तो उसमें 1% और उसमें पूरी दुनिया से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं करते और चांस बेसिस होता है। बाकी जो आपने बात की टेस्ट वाली, तो पाकिस्तान में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है, और बेसिकली प्राइवेट टेस्ट होते हैं और वो कंसल्टेंट्स करते हैं, और बेसिकली स्कॉलरशिप नहीं है, वो डिस्काउंट होता है जो एक कंसल्टेंट अपने सर्विस चार्जेस को कम करके देता है, तो उसको हम स्कॉलरशिप नहीं कह सकते। ओके अभी पाकिस्तान में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं या आपने इंजीनियर बनना है या आपने डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब महंगाई जितनी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना मुश्किल हो गया थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, तो एक तो हो गया ना फाइनेंशियली कि उनको फीस है या उनको उनके लिए स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग में मिलती है नहीं, आप मेडिकल को तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बारे में बताएं, उससे बताएं कि जैसे कि आप बाहर यूके जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं तो आईएलटीएस टेस्ट का वो जो है तो ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट। अगर आप हमें बता दें कि स्टूडेंट फ़ीस के अलावा कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो उनके लिए ज़रूरी है चाइना जाने के लिए। बिल्कुल, अगर चाइना में कोई भी स्टूडेंट एज अ इन मेडिकल प्रोफेशन या इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करता है तो उसको कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ना उसको आइट्स चाहिए, ना उसको टोफल चाहिए, ना उसको कोई और इस तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। जो मैटर करता है उसके एफएससी के मार्क्स मैटर करते हैं और उसकी एज 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही पासपोर्ट साइज पिक्चर्स है, मैट्रिक, एफएससी और मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बस जो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो, मार्क्स पूरे तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है। ओके, एज जो है वो 18 टू 25 होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, बैचलर्स में रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उससे कम में कुछ सॉल्यूशंस हैं लेकिन वो इतने यानी इफेक्टिव नहीं है। बेहतर है कि 18 प्लस बच्चा हो तभी अप्लाई करे। कॉलर है, फिर आते हैं जी जनाब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? सूखती हमजा अहमद बात कर रहा हूँ। जी हमजा साहब, जी 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 फरमाइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एमबीबीएस करते हैं चाइना से जी या तो हमें उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं या हमारे लिए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? अगर हम एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जाते हैं बाहर एमबीबीएस करके आते हैं तो क्या हमें जॉब इधर पाकिस्तान में मिल सकती है और उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, पाकिस्तान में या चाइना में? पाकिस्तान में, दोनों जगह पे। और हमारे पास एमबीबीएस करने के बाद क्या ऑप्शन होंगे? थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे? मैं देता हूँ मैम। देखिए, जो एक डॉक्टर है ना, हाँ, जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ पे एक डॉक्टर चाहिए, क्योंकि बीमारियों ने भी आना है, उनके इलाज भी होने हैं, पेंडेमिक्स भी आने हैं, तब भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ये सवाल के आफ्टर एमबीबीएस एज अ डॉक्टर आप कहाँ पे काम कर सकते हो, तो ये कि वो तो सारी दुनिया को पता है कि एज अ डॉक्टर आपकी अच्छी खासी वर्थ है, रिस्पेक्ट वाइज भी और फाइनेंशियली भी। बाकी अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बीइंग अ मेडिकल, जब आप एक डिग्री है आपके पास तो आप एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पाकिस्तान के लोकल हॉस्पिटल में अप्लाई करो और उसके बाद गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, वो फिर आपको सीट अलॉट कर देते हो और आप एज अ डॉक्टर आप काम कर सकते हो। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एज अ डॉक्टर काम करने के लिए आपकी चाइनीज़ इतने अच्छे लेवल पे होनी चाहिए कि जिस तरह आप पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको सारे पेशेंट्स उर्दू पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, तो अगर आप चाइना में एज अ डॉक्टर काम करना है तो आपकी चाइनीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उनसे चाइनीज़ में बात कर सको। चाइनीज़ सीखने के लिए कितना वक्त दरकार होना चाहिए? मैम, चाइनीज़ इज़ वेरी टफ, क्योंकि क्योंकि देखिए एक लैंग्वेज तब मुश्किल होती है जो मुझे लगता है जो अल्फ़ाबेट्स उनके होते हैं जो ज़्यादा हैं तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल, बिल्कुल कम है तो वो लेवल जिस लेवल पे आप करेंगे वो उतना है। लाइक तो मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में HSK 4 का लेवल हो जाता है। 300 वर्ड्स है ना, अराउंड 5000 कैरेक्टर्स हैं इनके। लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट हमें जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं, वो अगर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट डॉक्टर बना और वो चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर ज़करिया ने कहा कि अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको 5000 वर्ड्स याद करने फिर बिल्कुल। अब देखें ना, पाकिस्तान में तो हम बता देते हैं सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, वहाँ पे एक पेशेंट बता रहा आपको चाइनीज नहीं आती तो आप कैसे उसको डायग्नोस करोगे? पूछेगा चाइनीज में बताएगा तो आप किस तरह से आंसर देंगे? लेकिन एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज टेस्टिंग चाहिए। चाइनीज यूनिवर्सिटीज खुद ही आपको साथ साथ पढ़ाती जाती है। देन एट द डिग्री के एंड पे आपको
आपको चाहिए होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आपने वहाँ से पढ़ा? जी बिल्कुल, मैं चाइना से ग्रेजुएट हूँ। हाँ, तो आपने चाइनीज़ कितने टाइम में सीखी? चाइनीज़ मैम मुझे तो इनिशियली 2 इयर्स लगे थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं चाइना में गया था तब इतनी वो कंपल्शन नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में चाइना में अगर आपने MBBS करना है तो फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज कंपल्सरी है। यानी मैंने अगर 2 साल में किया तो अब जो बच्चा अप्लाई करेगा वो 1 साल में करेगा, और यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाती है, बच्चा कर जाता है। अच्छा, इसके 4 का लेवल होता है, इसके 6 लेवल है टोटल, तो 4 तक वो क्लियर करते हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा लाइट मूड में लेके जाती हूँ। मैं कल मेरे साथ 2 गेस्ट आए हुए थे, एक बलूची लड़की थी और एक पर्शियन बोल रहा था। तो पर्शियन मुझे आती थी, तो वो लड़की को मैं पश्तो सिखा रही थी, वो फारसी सिखा रही थी। तो मैंने कहा आप हमें बलूची सिखाएं। ठीक है। तो बात ऐसी चली कि आप जब भी कोई लैंग्वेज सीखते तो आप गाली सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्या चाइना में भी ये है? बिल्कुल, ये रस्म है? ये मैं आपको इसके रिलेटेड तो बताता हूँ कि ये ना सबसे पहले जाते ही ना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी भी गालियाँ कितनी देते हैं, चाइनीज़ में जाके वो दे रहे होते हैं, चाइनीज़ को गालियाँ दे रहे होते हैं बेसिकली, मोस्टली देखते हैं फनी, ये नहीं कि गुस्से में देते हैं, फनी कि यार इनको तंग करें, किस तरह से आगे रिस्पॉन्स देते हैं। एक कॉल है, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हमजा आप भी गए हैं और डॉक्टर साहब आप भी गए हैं वहाँ पे, तो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसके ऊपर भी ज़रा बात कर लें। लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर हैं जी, हकीम साहब हकीम साहब आज प्रोग्राम में नहीं तो कॉल पे आ गए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हकीम सुभान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम सिंह, हकीम से बखैर था सो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सासो प्रोग्राम को माशाअल्लाह डेस को प्रोग्राम रवान ने। जी जी मना थैंक नो यू। जमाम यो सवालो जी जी प्लीज। मारा तपोस को ची द चैना ना MBBS कई आओ नो पते बने तकरीबन टोटल खर्चे सुमरा राजी। हाँ। और बल तपोसदार है चे आया MBBS के नो पाकिस्तान के द कन्वर्ट को पारा सब्या बल प्रोसेस पे और कना तल के आगे एक्सेप्ट की एज MBBS। ठीक जी, थैंक यू हकीम साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, लाइक हैं, और इन्होंने कॉल किया, उन्होंने पूछा, आपने सवाल सुन लिया। खर्चे का मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि अगर कोई MBBS के लिए जा रहा है तो उसका खर्चा कितना आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगर वो MBBS करके आता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है नहीं है, उसकी डिग्री एज MBBS यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये 2 चीज़ें। यहाँ पे मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे खर्चा कितना आएगा, तो आया ये यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के मुताबिक या प्रोविंसेस कहीं पे एजुकेशन सस्ती है तो कभी भी कई प्रोविंसेस वहाँ पे महंगी है, तो ये भी कोई सीन होता है? एग्जैक्टली मैम, चाइना में यानी जितने प्रोविंसेस हैं हर प्रोविंस में फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मिनिमम स्टार्ट होता है 7 लाख रुपीज़ से लेकर 8 लाख रुपीज़ तक एनुअली, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो अगर एक 7 से 8 लाख तक खर्चा 1 साल का, तो 5 सालों का आप देख ले 40 लाख रुपया ये बन जाता है। और अगर आप 6ठा साल भी इंक्लूड कर लो तो 48 लाख रुपया। इसके अंदर खाना पीना शामिल नहीं है, मंथली जो एक्सपेंस है वो शामिल नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस के अंदर शामिल है। बाकी आफ्टर डिग्री आपकी वो डिग्री एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PMC, ECFMG एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और IAAR से एक्रीडेटेड है, तो डेफिनेटली आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पूरी दुनिया में आपकी डिग्री वेरीफाइबल है। थैंक यू। हमजा स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि खाने पीने का मसला होता है लैंग्वेज के अलावा कोई, तो आप चूँकि स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप बताएं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसले होते हैं या नहीं होते, या ये झूठ नहीं है? ये पहले था लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना में स्टूडेंट आते हैं, तो उनमें ये चीज़ है कि ना बेसिकली कि हर यूनिवर्सिटी में अपनी कैंटीन्स होती हैं, अपना मेस होता है। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, हलाल फूड्स दिए, हर मेस में उन्होंने 1-2 सेशंस बनाए हैं जिसमें हलाल फूड आपको मिलते हैं। फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के करीब हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक जिसको चाइनीज़ में कहते हैं शेंजन रेस्टोरेंट है, तो वो चाइनीज़ में उसको शेंजन कहते हैं, मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट है, तो वो हर जगह आपको ईजीली मिल जाते हैं, उसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सही है, ठीक है। हफ्सा आप भी चाइना हो क्या? नहीं, मैं हो के नहीं आई, मैं एनरोल हो चुकी हूँ MBA में, तो आप इंशाल्लाह सितंबर में। अच्छा, तो आप जा रही हैं हमें छोड़ के? ठीक, कितने अर्से के लिए जाएंगी? मैं 3 साल के लिए। ओए अच्छा, मैं भी गई हूँ चाइना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी। मेरी फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मैं उनकी ग्रेजुएशन पे गई थी। ठीक है। हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर एज ए विजिटर में गई थी। लेकिन अभी इस बात पे आते हैं, वीज़ा एज ए विजिटर अभी मैं कि बहुत मुश्किल है, आपको कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, रिलेटेड सारी चीज़ें, ये तो एक विजिटर के लिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें पता है कि कोविड को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो है तो प्रोटेस्ट भी इस हवाले से हो रहे थे कि अभी दोबारा उन्हें अगर लॉकडाउन शुरू किया, लेकिन दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे लंबा लॉकडाउन और उन्होंने जो किया है, पाबंदियाँ जो है, बॉर्डर जो है वो चीज़ें, फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं सारा, और ये स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस मैन जो रहते हैं उनके लिए भी थे सब कुछ। तो अभी क्या स्टूडेंट जा सकते हैं? फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं, क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल मैम, चाइना में मैं 2-2.5 साल से लॉकडाउन लगा। सॉरी हुमा की कॉल लेते हैं हम लाहौर से। लाहौर बहुत दूर से हैं। कॉल इसलिए लेते हैं, फिर जब से मैं जवाब देती हूँ। जी 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 हेलो हुमा। जी वालेकुम अस्सलाम जी हुमा संगई तासो ज़ख़ैम जी हुमा बीबी से तपोस कोल ग़वाड़े चाइना की मेडिकल कवल ग़वाड़म ने दी बस प्रोसेस भी MBBS पे कवल ग़वाड़े के स्पेशलाइजेशन कवल ग़वाड़े जी MBBS कवल ग़वाड़े चाइना के। सही आप कुछ पूछ रहे हैं, वो कहें मैं चाइना में MBBS करना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है, कुछ सवाल पूछेंगे? मैम आपके FSC में मार्क्स कितने हैं? 900। और आपकी एज क्या है? 22। अब डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं यानी, और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, ऑक्सीजन है, यानी बाहर अगर आपने जाना है तो पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आप मैट्रिक, FSC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना एक बनवा लें। आप लाहौर से हैं तो आपके लाहौर जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना है वहाँ से आपका पुलिस सर्टिफिकेट बन जाएगा। और किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, उसका एक फॉर्म होता है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, इनका नंबर जो है हुमा आपको नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट सारे एड्रेस भी यहाँ पे आ रहे हैं, टेलीफोन नंबर भी है। आप प्रोग्राम के बाद इनको कॉल कर सकते हैं। और जैसे हफ्सा ने कहा कि हम ऑनलाइन भी आपको हेल्प आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आप अभी तक थी हमारे पास कॉल में हुई। तो हफ्सा ने जैसे कहा ना कि आपको लाहौर से आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप ऑनलाइन उनके साथ बात कर लेंगे तो आपको अच्छे से गाइड मैं इस चीज़ को एक कह सकता हूँ, हमारा एक ऑफिस लाहौर में भी है। अच्छा, ये ज़करिया भाई लाहौर में होते हैं। लाहौर में तो इनका ऑफिस आप लाहौर से क्या लेके आए हैं हमारे लिए? मैम लाहौर से काफ़ी चीज़ें लाई हूँ, आपको शो के बाद मैं आपको इंशाल्लाह डिलीवर क्या आपको शो के बाद डिलीवर करूँगा। आपको नहीं मिला ना, मैं कल सुबह फिर बैठूंगी शो में, बताऊंगी मैं। और वो नहीं है तो मेरे ख्याल में इस वीकेंड में मैं आ रही हूँ लाहौर, मुझे वहाँ क्या मैंने आना है। थैंक यू जी, आपको आज भी देंगे और आपको शो लाहौर आके भी देंगे। आओ स्वीट, थैंक यू जी। लिदन को मुंग सर मिलमान नास्ती जिन क्वेश्चंस दी आगा पाती दी, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो भी मैं जवाब लूँगी आपसे। खुदा होंगे और कोड शांति दमाल लूँ वापस लासानी की को पखैर पुख्तन खास रहा उसे। मुझे बुखार है रात से। उनको स्पेलिंग नहीं आ रही थी जो मेरे बहन भाई थी जी। वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा। उसमें हम ब्रेक में कुछ डिस्कस कर रहे थे, हम आपको थोड़ी बताएंगे हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी। डॉक्टर साहब आपसे मैंने पूछा था कि फूड के बारे में बताएं। मैम बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप चाइना में हो तो हलाल फूड आपको इजीली सुपरमार्केट से मिल जाता है। अच्छा, वहाँ पे अगर लेट से आपने मीट लेना है, कुछ भी लेना है, उस पर ना हलाल फूड का टैग लगा होता है। अच्छा, तो आप वो बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी। सेकेंडली, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट होते हो वहाँ पर हलाल फूड रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, मुस्लिम इजीली रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाते हैं। थर्डली, जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स करते हैं वो अपना खाना खुद अपने रूम में बनाते हैं। ज़्यादातर हॉस्टल में भी ऐसे होते हैं। ज़्यादातर हॉस्टल में अपना खाना खुद बनाते हैं और इजीली बन जाते हैं। मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाते, एक्सपेंसेस भी कम आते हैं कुछ। हाँ, वो मिलके बना लेते हैं ना। और ये भी होता है कि आज आपने बना लिया तो फिर काम डिवाइड हो जाता है, एक आटा गूंथता है, एक सब्जी का। आपने क्या किया, आपने आटा गूंदा या आपने खाना सालन? वो नहीं मैं बताऊं। मैंने सिर्फ खाया भी है और ये कि सारे काम करते थे, बांट लेते थे। आपकी शादी हुई है, मंगनी हुई है आपकी? एंगेजमेंट हुई है। हाँ, तो तभी वो उसको नहीं कि मुझे ये काम आते हैं फिर करवाएगी ना। तो डॉक्टर साहब नहीं बोलना चाहते ऑन स्क्रीन ने सारे काम किया। मैं स्टूडेंट जो जाते हैं ना भाई, वो सारे वो कपड़े भी धोते हैं, वो खाना सारा कुछ करते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, अपना ख्याल भी खुद रखते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे मैं दुनिया में ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है, लेकिन जो चीज़ मैंने चाइना में खाई है वो है फ्रूट पिज़्ज़ा, जो फ्रूट से वो बनाते हैं। वो मैंने कनाडा में कहा कि मैं खा लूँ, मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत मज़े का था। आप लोगों ने खाया? हमसा खाया फ्रूट पिज़्ज़ा, जो उनका तो फ्रूट से बना होता है पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा होता है, एक फूड उनका, एक लाइक जैसे हमारा पराठा रोल मिलता है, काइंड ऑफ पिज़्ज़ा उसमें पाइनएप्पल्स थे, वही बिल्कुल। हाँ, लेकिन चाइनीज इसको पिज़्ज़ा नहीं बोलते। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो बेसिकली उसको पराठा रोल टाइप बोलते हैं। वो आपने देखा होगा मोस्टली रेस्टोरेंट पे भी, कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलता है, नहीं तो मोस्टली ओपन मार्केट में मिलता है। हमारे तंदूरी पराठे को या उसमें जो टमाटर प्याज डाल दे तो उसको भी पिज़्ज़ा कहते हैं। बिल्कुल, हम चाइनीज को पिज़्ज़ा कहते हैं। ओके जी जी, बिल्कुल टेक्निकली वो पिज़्ज़ा नहीं है। अच्छा, टेक्निकली जी टेक्निकली पिज़्ज़ा नहीं। अच्छा जी, लाहौर से जी हमारे पास एक कॉलर हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पख्तो का उर्दू उर्दू में? हाँ जी, उर्दू जी। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप?
जी मैम, मैं लाहौर से हनान बात कर रहा हूँ। जी हनान तो साहब। मैंने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और पीएस में ना। जी जी। और मैं ना एडमिशन लेना चाहता हूँ फर्दर आगे चाइना में ना, स्कॉलरशिप का मैंने पूछा था। अच्छा जी तो डॉक्टर साहब। मेरा CGPA 3.2 है और मुझे ये थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी कि चाइना में मतलब स्कॉलरशिप अवेलेबल है नहीं है और क्या क्या क्राइटेरिया है ना। मैं बिल्कुल जो CGPA हनान का बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू, आपको जवाब देते हैं। 3.0 प्लस CGPA होना चाहिए, तो उसमें आपकी जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चाइना में 2 स्कॉलरशिप्स है, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी भी फ्री है, अकोमोडेशन फी भी फ्री है, साथ मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चे को। वो स्टार्ट होता है 2000 RMB से स्टार्ट होता है, 4000 RMB तक जाता है, यानी पाकिस्तानी 60,000 रुपये से लेकर तकरीबन 1.5 लाख तक बच्चे को मंथली यूनिवर्सिटी पे करती है। इसको हम कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ओके। और सेकंड उसकी कैटेगरी है पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप। पार्शली फंडेड में ये कि आइदर ट्यूशन फी हाफ हो जाएगी, हॉस्टल फी पे करनी पड़ेगी, या ट्यूशन और अकोमोडेशन दोनों हाफ मिला के हाफ हो जाएंगे। वो जिस तरह भी यानी यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो करके वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनका CGPA अच्छा है, इनको अप्लाई करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं उसके बाद उनको। जी बिल्कुल ना, आपको नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इनका आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे में एक सवाल है, 2 सवाल हैं, पहले एक सवाल करूँगी। पहला सवाल मेरा ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो अब्रॉड जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पैसे दे दिए हैं, बाकी मैं खुद काम करके कमा लूँगा। और वो तो आया चाइना में स्टूडेंट के लिए है कोई, जैसे कि UK में है तो मैं ख्याल में कोई 4 घंटे का कुछ है या इस तरह के कुछ घंटे के स्टूडेंट काम कर सकते हैं, क्या चाइना में ये परमिशन है स्टूडेंट की? जी आप हाँ मैम, नहीं, चाइना में बीइंग अ स्टूडेंट आप जॉब नहीं कर सकते, चाइना में जॉब्स करना इलीगल है। अच्छा। और जो स्टूडेंट है मोस्टली अपने एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने के लिए क्योंकि ऑनलाइन जॉब करना चाहे तो वो करता है, यानी लेकिन फिजिकली आप नहीं जा सकते, नहीं कर जैसे सकते कि किसी पिज्जा हट में, मैकडॉनल्ड में और कहीं पे आप काम कर सकें या किसी स्टोर में काम कर सकें, वो नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करता हूँ, इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, मैंने पहले भी बात की थी लैंग्वेज पे, इस पे ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका टेस्ट एक लेती हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो कुछ यूनिवर्सिटी लाइक मेरी यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ प्रोवाइड कर रही थी, तो अगर आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आप एक टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी, देन आपको एक वीज़ा जो आपका परमानेंट है वो लगवाती है, पासपोर्ट है अलग से। तो आप जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो X1 और X2 वीज़ा होता है। X1 होता है लाइक जो आपने 6 मंथ प्लस करना होता है, X2 लैंग्वेज वीज़ा होता है, लेकिन इसके उस पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है, इस लिहाज से आपको यूनिवर्सिटी अगर क्योंकि वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, तो जितने ज़्यादा फॉरेनर्स की लैंग्वेज अच्छी होती है वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, बच्चे काम करेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे, अपनी लैंग्वेज का भी लोगों को बताएंगे, हमारे कल्चर्स भी सीखेंगे। तो इसको क्या करते हैं कि वो जब आप टेस्ट देते हैं फिर वो ब्यूरो में एक आपको पता है कि एक परमिट मिलता है, फिर वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाता है कि आप पर वीक या पर मंथ इतने आवर्स काम कर सकते हैं। वेरी गुड। एक तो कोविड की वजह से फ़्लाइट्स बंद थी, फिर कोविड जब फ़्लाइट्स खुली तो अब क्वारंटीन का है, ठीक है। फिर चाइना के लिए टिकट्स भी थोड़ी सी महंगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी सस्ती मैंने सुना है कि हो गई हैं। लेकिन क्वारंटीन का ये है कि अब लोग कहते हैं कि हम जाएं, स्पेशली स्टूडेंट ना, तो होटल्स का रहें कैसे, वो कितना एक्सपेंसिव है और कितने दिन के लिए। कभी तो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 हफ्ते हैं, कुछ कहते हैं 1 महीना है, इसके बारे में क्या? मैम जो क्वारंटीन की पॉलिसी है पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, 21 डेज़ का चाहिए होता था, फिर उसको कम करके 15 किया, अब 3+5 चल रहा है। ओके। इसका मतलब क्या है, एक बच्चा जो पाकिस्तान लाहौर से ग्वांगचू यानी चाइना में लैंड किया, वो पहले ग्वांगचू के सिटी में तकरीबन 5 दिन रहेगा। ओके। उसको मॉनिटर करेंगे कि इधर इसको कोई कोरोना तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं लेकर आया। फिर उसके बाद वो ग्वांगचू से लेकर अपने सिटी में जब ट्रैवल करेगा, यानी डोमेस्टिक जब ट्रैवल करेगा, फिर जिस सिटी में उसकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके भी उसका 3 दिन का क्वारंटीन होगा। और अगर उसमें भी वो क्लियर, उसका PCR टेस्ट क्लियर निकलता है तो फिर उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी भेज देंगे। उसके बाद फिर एक फर्दर एक फॉर्मल सा 2 डेज का दोबारा क्वारंटीन होगा, वो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा। और जो इस क्वारंटीन के एक्सपेंस है वो पर डे 300 RMB से लेकर 500 RMB तक होता है। उसमें आप इनका खाना पीना जी फूड भी इंक्लूड होता है, डेली का आपका फूड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कुछ सिटीज़ में इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ सिटीज़ में बच्चे को खुद भी पे करना पड़ सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द ये कि हलालपुर वहाँ पे कितना पास है, कितना दूर है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है, कुछ बच्चे कहते हैं जी नहीं मैंने 300 वाले में नहीं, मैंने बहुत VIP रहना है या 5 स्टार होटल में रहना है, फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको पता है 5 स्टार मोस्टली नहीं प्रोवाइड करता है इतनी चीज़ें। और क्वारंटीन के बारे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे जब लैंड करते हैं खुद ही चाइनीज ऑफिशियल्स आते हैं, बच्चों को एयरपोर्ट से पिक किया, उनको खुद ही होटल में लेकर गए, वहाँ पे जब उनका क्वारंटीन खत्म हो तो खुद ही उनको फैसिलिटेट करते हैं अपने सिटी में ट्रैवल करने के लिए। जब वो अपने सिटी में पहुँच जाते हैं वहाँ पे भी फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं, यानी सारा चाइनीज ऑफिसर बड़े अच्छे तरीके से। एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी अभी आई है, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म करते हैं कि नहीं, लेकिन कॉलर लेते हैं जी। हेलो जी
जी सूख दमुक सर कम से ना हेलो जी जी तो आती है जी कौन जी मैं सजाद बात कर रहा हूँ जी सजाद साहब फरमाइए जी मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ प्लीज कि अगर एमबीबीएस चाइना में करना हो जी तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं ज्यादातर मतलब हमें स्कॉलरशिप की बताया जाता है कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं चाइना में तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कर सकते हैं चाइना में अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं सिर्फ उसका जो मेन है वो आपकी परफॉर्मेंस बेसिस है। आप एडमिशन लेते हैं सेल्फ फाइनेंस पे। उसके बाद अगर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्लास के टॉपर्स में से आप आते हैं, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं तो टॉप 10 या टॉप 15 में, तो उसकी बेस पे आपको सेकंड ईयर ऑनर स्कॉलरशिप मिल सकती है। सेकंड, आपको अगर एचईसी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो 1000 में से एक आधे बच्चे का ही होता है। तो बस ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अलावा 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसमें भी नाम वाली बात है। तो आप ये समझे कि नहीं है स्कॉलरशिप उसमें ये हो जाता है ना कि प्रोफेशनल स्कॉलरशिप हो जाती है या अच्छे आप अच्छा परफॉर्म करें वो स्कॉलरशिप हो जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। लाइक 2000 RMB 5000 RMB वो आपकी फीस या आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस उसमें से नहीं निकलते। ठीक है तो फिर वो लेकिन आप यही कर लें कि आपकी पॉकेट मनी है लेकिन स्कॉलरशिप तो नहीं हम उसको इंक्लूड कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि पाकिस्तान में ना स्कॉलरशिप के टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं और करवाने वाले बताते हैं बच्चों को कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट करवा रही है या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो बच्चों को क्लियरली पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर टेस्ट करवाएगी तो वो आपके एफएससी मार्क्स क्यों ना काउंट करे। वो इस तरह कोई 100 नंबर का या 150 नंबर का भी टेस्ट थोड़ी करवाएगी, वो तो आपके एफएससी के मार्क्स देखेगी या फिर आपका इंटरव्यू देखेगी। या तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करे ना, फिर उनको लगे कि यार ये वर्थ इट है, ये बच्चा इतना क्रेडिबल है कि इसको हम अपने पास बुला ले, तो 100 नंबर का 150 नंबर के टेस्ट की बेस पे कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे कंसल्टेंट्स इस चीज़ को भी मैं भी ज़किया भाई की बात पे थोड़ा सा करता हूँ कि लाइक ये देखें कि जो ये चीज़ आप माइंड में रख लें कि चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड करती हैं, यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल से इंटरव्यू लेती है, अपनी एक वो मीटिंग होती है या उनकी अदर एप्लीकेशंस है लाइक डिंग टॉक है और क्लास इन है, इस पे बच्चों का इंटरव्यू करती है, वो अपनी आईडी देती है, अपनी ऑफिशियल पोर्टल से लेती हैं। तो ये नहीं है कि लाइक मैं कहूँ जी कि मेरा एक पोर्टल है, मैंने एक वीचैट ग्रुप बना लिया कि ये जी यूनिवर्सिटी ने पेपर भेज दिया, ये चीज़ें फेक है। ठीक है, है, तो ये चीज़ें हमने अवेयरनेस यही बच्चों को देनी है कि ये चीज़ें आप क्लियर करें, हमसे कर लें, किसी और से कर लें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, यूनिवर्सिटी उसको विदिन 2 डेज वेरीफाई कर देती है। वो तो कोई नंबर दिया होता है यूनिवर्सिटी ने, ईमेल्स दी होती है। तो ठीक है, आखिरी में जो प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, ये एक सवाल है, वो ये है कि ज़रा जल्दी जवाब दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, सहूलत मिलती हैं या ज़्यादातर मुश्किल है, क्या है? मैम, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं डेफिनेटली उनको हॉस्टल्स भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हॉस्टल में हर चीज़ अवेलेबल होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए। और इसके अलावा अगर हम स्टडी वाइज बात करें तो वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज हैं, उनकी वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे और अच्छे लेवल की हैं, बहुत अच्छे लेवल की हैं, यानी वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं। इवन कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था वो एशिया की 3rd लार्जेस्ट लेबॉर्ट्री थी। वहाँ पे कैंसर की रिसर्च चीज़, हेपेटाइटिस की रिसर्च चीज़ वहाँ से वो निकलती थी, फिर WHO के लेवल तक जाती थी। तो ज़ाहिर जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़े तो आपका जो ग्रूमिंग होती है, जो एक मेंटल लेवल होता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट पेस पे काम कर रहा होता है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हाँ। तो इसमें देखें कि लाइक मैं फिर बात करता हूँ कि मैं ये नहीं पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा हूँ या फॉरेन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें ये है कि बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मोस्टली बच्चे कहते हैं ये पाकिस्तान में करने का क्या फ़ायदा है, उधर से करने का। ये देखेंगे पाकिस्तान के मोस्टली कॉलेजेस हैं, इनका एक ही अपना हॉस्पिटल होता है। लेकिन चाइना के आप देखें कि नॉर्मल से नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ भी है ना, उनके 20+ हॉस्पिटल्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड। और एक हॉस्पिटल 4-4 हज़ार बेड्स वाला, यानी ये जो मेडिकल स्टूडेंट वो समझते हैं इस चीज़ को, इसका मतलब क्या है 4000 बेड वाला अगर एक हॉस्पिटल, ये नहीं है कि 10 सीटें लगा दी तो ये हॉस्पिटल है, तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, आप साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लिदुन को उम्मीद से रज़म प्रोग्राम वक्त खत्म हो। माय गॉड, ज़की माने ज़की सलाद रेडी शो। बिल्कुल मैडम, सलाद रेडी शो माशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। लिदुन को जुन खैर सबब सर मुलाकात की पर अल्लाह मुस्पारम दाल्ला पमा।